Hello students, welcome to UVN Academy. We continue with the current electricity part 8. Today we are going to do the application of Kirchhoff's law. In the last video we explained the sign convention of the Kirchhoff's law, the Kirchhoff's laws and how to use them. I gave you the basic idea. So today we will apply the Kirchhoff's law in the various networks, and one of that network is a Wheatstone bridge. Now what is a Wheatstone bridge? See, if we have a combination like this of four resistances P, Q, R, S, you can write anything R1, R2, R3, R4, and we have to prove the condition. See bache, this question comes directly also, prove the condition of the balanced Wheatstone bridge. The Wheatstone bridge is said to be balanced when P upon Q is equal to R upon S. This is a condition of balanced Wheatstone bridge, and in this situation Ig will be equal to 0. See, what did I write? What I've written is, if the ratio of P upon Q is equal to R upon S, yani if say P is 4, Q is 8, R is 3, S is 6, तो P upon Q भी क्या आ रहा है बच्चे? 4 upon 8, R upon S क्या आ रहा है? 3 upon 6. Let us take any resistors. I am just choosing arbitrary values. So in this situation, we will see that no current flows through the branch CD. Ig is equal to 0 means इस branch CD में से कोई current flow नहीं करेगा. Now, this can come in the direct question that using the Kirchhoff's law, derive the condition of the balanced Wheatstone bridge. तो हमें Kirchhoff's law apply करके ये prove करना है कि when P upon Q is equal to R upon S, then the current through the branch CD is 0. And I will explain you qualitatively also. Through the series parallel also, there is a proper logic behind it. But the points should be A and B, like the battery should be connected between A and B. अगर बैटरी आपकी C और D के बीच में connected है बच्चे, तो then this will not be a Wheatstone bridge. And the ratio of this upon this should be equal to this upon this. ये आपको ensure करना है. So you can draw this network. It is actually nothing but this way. एक तो ये आपका direct question भी आ जाता है कि find the condition of the balanced Wheatstone bridge. और दूसरा आपको इसको यूज करने में न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है. मीटर ब्रिज इज बेसिकली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल भी आता है, मीटर ब्रिज की वर्किंग भी आती है. मीटर ब्रिज आपके प्रैक्टिकल्स में भी है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यूजिंग मीटर ब्रिज. तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज. अ वेरी सिंपल इजी कंसेप्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आता है ना बच्चे, तो समझ लो फ्री के मार्क्स हैं. Because see, it's very easy to apply. It is like this only. P and Q. P is connected. This is point A. This is point B. P is connected between A and C. This is A. Let this point be C. So P is connected between A and C. Q is connected between C and B. If this is B, this is also B. This is also B. They all are at the same potential. Conductor के सब points पे potential same होगी. So Q is connected between C and B. R is connected between A and D. यहाँ से एक ब्रांच आपकी A से दो ब्रांचेस जा रही हैं. अगर हम अदरवाइज भी देखते हैं, this is a battery. When the battery sends current, the current I reaches at the point A, and then at A it has two branches. I'll do the current distribution also. First I'm explaining you how I can break this circuit into this. So R is connected between A and D. So this is your R. This is A, and S is connected between D and B. So this is your S, which is connected between D and B, and in between C and D the resistance G is connected. You can label them R1, R2, R3, R4, anything. अब बच्चे मैंने G की कोई वैल्यू नहीं लिखी because Ig will be 0. It means the role of this resistance will be nullified. This resistance has no role to play. This will become a simple series parallel resistor. How come? पहले इसको किरचॉफ से समझते हैं. किरचॉफ से तो फिर हम इसको निकाल ही लेंगे. पहले आप इसको सीरीज पैरेलल से समझिए. सीरीज पैरेलल से देखिए बेटा, if I have taken the values 4, 8, 3 and 6 ohm,
Let us suppose this is any resistor of 10 ohm. Fine. And I have applied a battery of say 12 volts. 12 volt deliberately मैं लेती हूँ, रेशियो में डिवाइड करना हमारे लिए इजी होता है. So now what will happen? जब आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर आप फिलहाल इस जी हम why the current through CD is 0, the logic behind is कि when P upon Q is equal to R upon S, तो इस CD ब्रांच में करंट क्यों नहीं जाता? Because current always flows from high potential to low potential. अगर CD ब्रांच में करंट नहीं जा रहा तो it means that VC is equal to VD. If VC is equal to VD, अगर VC और VD आपके पास इक्वल होगा तो दिस मीन्स कि CD ब्रांच इज एन इक्विपोटेंशियल ब्रांच. अगर वो इक्विपोटेंशियल ब्रांच हो गई है तो उस पे कोई भी करंट नहीं जाएगा. ऑब्वियसली करंट को जाने के लिए therefore ICD is equal to 0. करंट को जाने के लिए we need a potential difference. If the current will flow in any branch, only if there is some potential difference. अब देखिए बच्चे, अब C और D हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है कि VC is equal to VD. आप 12 वोल्ट की बैटरी लीजिए. अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी एक सीरीज ब्रांच है आपके पास 4 और 8 के रेजिस्टर की, दिस इज 4, दिस इज 8, ठीक है. अगर मैंने एक बैटरी 12 वोल्ट की लगाई है तो दिस इज बिटवीन A एंड B. तो इस पूरी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 वोल्ट. एंड इन सीरीज V1 is to V2 is directly proportional to R1 is to R2. V is equal to IR होता है बच्चे. और 4 ओम का करंट और 8 ओम का करंट क्या है? सेम. I अगर दोनों में सेम है तो V is proportional to R. So V1 is to V2 is equal to R1 is to R2. यानी जो 4 ओम के क्रॉस आएगा इसमें मैं VP is to VQ will be equal to how much? 4 is to 8. 4 is to 8 का मतलब क्या हुआ बच्चे? 1 is to 2. 1 is to 2 का मतलब क्या हुआ? आप अगर 12 वोल्ट को 1 is to 2 में डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना आएगा? यू नो हाउ टू डिवाइड इन द पार्ट्स. 12 वोल्ट को अगर आपको 1 is to 2 की रेशियो में डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उनको ऐड करो. 1 plus 2, this comes out to be 12 by 3, this comes out to be 4 volt. तो 4 volt will be each part. तो each part will be equal to 4 volt. यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? VP कितना हो गया? 4 वोल्ट. और VQ कितना हो गया? 8 वोल्ट. ऑब्वियसली 12 वोल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 4 इधर आएगा, 8 इधर आएगा. अब बच्चे ध्यान से एक बात देखिए कि VP is to VQ is 4 is to 8. ये पोटेंशियल डिफरेंस है. VP is पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VP अक्रॉस द P, विच मीन्स VA माइनस VC. अगर आप पोटेंशियल अलॉट करेंगे, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल को मैं 0 वोल्ट पे ले सकती हूँ और पॉजिटिव टर्मिनल को मैं 12 पे लेती हूँ बच्चे. जितने वोल्ट की बैटरी होती है दिस मीन्स इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना है. अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो नेगेटिव टर्मिनल 0 पे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल 12 पे. अदरवाइज आप जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं बना दीजिए. नेगेटिव कैन बी टेकन एज 12, पॉजिटिव कैन बी टेकन एज 24, negative can be taken as minus 12 and positive can be taken as 0. तो भी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 12 वोल्ट. तो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के यू कैन मेक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, बट जनरल प्रैक्टिस इज वी ऑलवेज टेक द नेगेटिव टर्मिनल टू बी एट 0 वोल्ट एंड पॉजिटिव टू बी जितने वोल्ट की बैटरी होती है. हर सर्किट में आप एक टर्मिनल को ग्राउंड कर सकते हैं, एक टर्मिनल को 0 वोल्ट पे ले सकते हैं. अगर आपके पास इफ यू हैव मोर देन 1 बैटरीज यू कैन नॉट ग्राउंड ऑल द नेगेटिव टर्मिनल्स. अभी हम देखेंगे अगर हमारे पास सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी है तो आप हर एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड नहीं करोगे. एक सर्किट का एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जीरो पोटेंशियल का. जैसे हम एक पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लेते हैं वैसे हम पोटेंशियल का भी रेफरेंस ले लेते हैं. सो द नेगेटिव टर्मिनल यानी बी की पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गई, ए की पोटेंशियल 12 हो गई. अब ए पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट है बच्चे, एंड इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? 4 वोल्ट. इट मीन्स कि आपकी सी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी बच्चे? अगर इस ये 12 पे है, ये 0 पे और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही 4 है, तो इट मीन्स द पॉइंट सी शुड बी एट हाउ मच? 8 वोल्ट. तो सी पॉइंट की मेरी पोटेंशियल क्या आ गई बच्चे? 8 वोल्ट. ए पॉइंट की 12 वोल्ट, सी पॉइंट की 8 वोल्ट. 12 माइनस 8 विल बी 4, 8 माइनस 0 विल बी 8, यानी क्यू के क्रॉस 8 वोल्ट आ गया
और P के अक्रॉस 4 वोल्ट आ गया। तो कोइंसिडेंटली आई चूजन द वैल्यूज 4, 8 एंड ये 12। अदरवाइज कुछ भी हो, इट कैन बी, इफ दिस इज 1:2, 3 and 6, and it can be anything, it can be 6, 12, it can be 12, 24, मतलब इनकी रेशियो अगर 1:2 है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आएगा। नाउ इफ आई गो टू द लोअर ब्रांच दैट इज A to D to B, here also I have two resistances, one is 3 ohm, one is 6 ohm। तो मेरा VR is to VS क्या है बेटा? VR is to VS will also be proportional to R3 is to R4, यानी VR is to VS will be proportional to 3 is to 6, 3 is to 6 is again 1 is to 2, यानी लोअर ब्रांच में भी 12 वोल्ट ने 1:2 की रेशियो में डिवाइड होना है, अपर ब्रांच में भी 12 वोल्ट ने 1:2 की रेशियो में डिवाइड होना है। तो इट मीन्स इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा बच्चे? 4 वोल्ट, और एस के अक्रॉस भी कितना आएगा? 8 वोल्ट। सो सेम रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। इट मीन्स अगर ये 12 पे था, ये 0 पे था, तो डी भी कितने पे आएगा? 8 वोल्ट। दिस प्रूव्स कि पॉइंट सी और पॉइंट डी की पोटेंशियल क्या है? सेम। अगर पॉइंट सी और पॉइंट डी की पोटेंशियल सेम है तो इस ब्रांच के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। It means the role of this 10 ohm resistance can be neglected. And now to calculate the net resistance of this circuit has reduced to the simple 4, 8, 3, 6, 4 and 8 in series 12 ohm, 3 and 6 in series 9 ohm. So 12 and 9, they are in parallel, a simplest possible circuit, which means 12 into 9 by 12 plus 9. So this is a qualitatively I have told you कि whenever P upon Q will be equal to R upon S, the point C and D will be at the same potential। और जब point C और D आपके same potential पे होते हैं बच्चे, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। Am I clear? The board is clear to you? Shall I rub these circuits? Now we have to derive this condition using the Kirchhoff's law. So we have to, this is said to be, the Wheatstone bridge is said to be balanced when P upon Q is equal to R upon S. Two things you need to remember. This upon this should be equal to this upon this. ये concept मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये बिल्कुल clear हो कि why there is no current, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। This upon this is equal to this upon this। अगर इन्वर्ट कर दूं मैं, S इधर ले आऊं, R इधर ले आऊं, ऊपर वाली ब्रांच की रेशियो इफ इट इज 1:2 और नीचे की 2:1 होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तब तो पोटेंशियल ड्रॉप इस ब्रांच में आएगा। एंड देन यू विल हैव टू यूज द सिंपल किर्चॉफ्स लॉ, मेक द इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ये तब होगा व्हेन दिस अपॉन दिस, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S एंड द बैटरी इज बिटवीन A and B, नॉट बिटवीन C and D। टू थिंग्स यू नीड टू चेक इन दिस सर्किट कि बैटरी कहीं C और D के बीच में तो नहीं है। बैटरी शुड बी बिटवीन A and B and ratio of P upon Q should be equal to R upon S. Am I clear? So now we come to the this proof of this Wheatstone bridge condition using the Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's है कि हमने two laws किए, KCL and KVL. First is current law. Current law की basis पे very simple, you have to divide the current. Shall I rub it बच्चे? It is clear. So ये वैल्यूज मैंने आर्बिट्रेरी ली हैं बच्चे। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब दिस कैन बी इवन द कॉम्बिनेशन आर। इस एडी ब्रांच में सिंगल रेजिस्टर की जगह आई कैन हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर। डीबी ब्रांच में आई कैन हैव द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर। मतलब नेट रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि एडी ब्रांच की रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस सीबी शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस DB। Means what am I saying is कि आपके पास जो नेट होना चाहिए रेजिस्टेंस अक्रॉस AB अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस CB should be equal to resistance across AD upon resistance across DB। यानी इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस दिस अपॉन दिस should be equal to this upon this, irrespective of कि CB में मेरे पास सिंगल रेजिस्टर है या सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट उसकी नेट रेजिस्टेंस को ही हम Q लेंगे। सो दिस विल बी P अपॉन Q
and this will be R upon S, but this is the net resistance I am talking about. Fine. So now we find out the general condition. I am removing these values for the proof of Wheatstone bridge. Simple, आपके पास एक बैटरी लगी हुई है between A and B. The battery has sent the current I. On reaching A, I had two branches to go. Some goes along AD, some goes along AC. So let us suppose I1 current goes along AC and यहाँ पे जाएगा I minus I1. You should take minimum possible variable. While applying the Kirchhoff's law, the first thing you have to do is you do the current distribution. और जब भी हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चे, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम वी नीड टू चूज द मिनिमम पॉसिबल वेरिएबल. एज आई टोल्ड यू, मोर देन 3 अगर आपके वेरिएबल आ गए तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज आप 3 से ज्यादा वेरिएबल को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर पाओगे. बिकॉज टू सॉल्व द मोर देन 3 वेरिएबल्स यू नीड मोर देन 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली, एंड 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाते इन द 12th. बट इफ मोर देन 3 विल कम, आइदर समथिंग विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन, or you should try to reduce the number of variables taking the help of symmetry or the false junction or something like that. Fine. So now I1 current goes along PC. On